and I welcome you all, those who are connected in this program. First of all, I would like to let you know that everyone knows, not only everyone knows, that we can stay without food, without water for days, but we cannot stay without breath for a few minutes. So breath is life, in other words. So if we make use of this breath properly, we can unfold our potential, and whatever we want to achieve, that can be achieved. The most important is that we can remain happy, healthy, and peaceful in our day-to-day life if we deal with this breath properly. So today we are going to discuss on this. Generally, we do not pay attention to our breath because it is an involuntary function like other functions. But this is the only secret that our ancient people, they have worked out, and they have whole life, devoted their whole life in searching this secret of breath, and they have developed a technique. It is known as pranayama. So this presentation I have divided into different parts. You can see at a glance. First of all, we'll see the significance of the breath in general and yogic breathing in particular. Then the meaning of the term pranayama, because in traditional text, the different texts, they are talking differently. So that will be particularly in Patanjali view and Hatha Yogic view. Then I wish to share with you that how this practice of pranayama developed right from the Vedic period to this Hatha Yogic level, the Hatha Yogic stage. And thereafter, because if really we are interested to practice and to drive the desired results out of this practice, then we must know the associated concepts. Say, for example, pran, nadis, bandhas, mudras, mitahar, the balanced diet, and chakras, mudras, etc. These concepts, if we understand properly, we will be able to make use of this practice properly. So, and the general hints for the practice of pranayama. What kind of precautions we should take and what kind of preparation we should have when we start practicing pranayama. Techniques and effects of pranayama for beginners, those who are starting, but there is advanced techniques and effects of 8 kumbhakas, because these 8 kumbhakas, varieties. In Yogic literature, varieties of manipulation, they have suggested that you can, whatever the problem, how we can deal with that problem. So they have given us the different ways and methods by which we can overcome. And thereafter, the power of pranayama, or this breath, at the physical level, mental level, and spiritual level, and the conclusion. This is what is the talk at a glance. So coming directly to at this moment, if I request you all, if you just check which nostril is dominant, if you check with the help of this, if you keep your thumb on the right nostril at this level, and you inhale through the left nostril, you see and check which nostril is dominant. We have to understand that both the nostrils, they are not working together. At a time, एक ही नोस्ट्रल जो है वो एक समय में काम करता है, दोनों नोस्ट्रल एक साथ काम नहीं करते हैं. आप अभी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं कि मेरा कौन सा नोस्ट्रल जो है वो भारी है और कौन सा हल्का है. Which one is dominant? That can be understood. अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा हो तो आपको ये खबर होनी चाहिए कि योर राइट हेमिस्फीयर इज एक्टिव नाउ. और जब आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा हो तो लेफ्ट हेमिस्फीयर उल्टा होता है. अगर राइट चल रहा है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका काम कर रहा होता है, और अगर लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है तो राइट चल रहा होता है. जो इसमें कोई साइंस की बैकग्राउंड रखने वाले अगर हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि whenever right nostril works at that point of time, all catabolic functions are going on. और ये जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा, वो जब राइट नोस्ट्रल चलता है तो लेफ्ट ब्रेन कंटिन्यू चलता है, जो कैटाबॉलिक फंक्शंस चलते हैं. और जब
लेफ्ट चलता है तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है, यानी राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। उस समय हमारा जो बियर टेयर्स है उसकी भरपाई होती है। तो ऐसा अपने थोड़ा सा एक सीक्रेट तो ये जानना चाहिए कि एक दोनों नोस्ट्रल एक साथ नहीं चलते हैं, और ये कोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली इट चेंजेस आफ्टर 1 hour, एंड व्हेन इट चेंजेस, इफ यू मार्क दैट टाइम, दैट पॉइंट, then thereafter you will be able to understand where both the nostrils they are working together. The whole purpose of this yoga is, according to Hatha Yoga, if I say Hat, when we say Ha stands for the right nostril, Surya Nadi, and Tha stands for the Chandra Nadi. So it is said in Sanskrit, Hakara Uchyate Surya, Thakara Chandra Uchyate, Surya Chandra Masur Yoga Hatitya Vidhyate. The whole purpose of Hatha Yoga is, it is not only to raise our legs and hands and do some exercises. No, the whole purpose of this Hatha Yoga is to tackle the breath. And how it is to be tackled, they have given us a proper methodology that we are going to discuss today. But at this point of time, you can observe, because it is a matter of observation, it is a matter of awareness. If you develop this awareness slowly, you will be able to even to understand how long you are breathing and how long you are exhaling. That can also be experienced. So we have to remember that whenever our right nostril is active, at that point of time, all catabolic functions are taking place. And when left nostril, so anabolic functions are going on. So this is what, and this course is changing. 1 घंटा के बाद ऑटोमेटिकली ये चेंज होता है, और वो चेंज जो होता है उस समय हमारे दोनों नोस्ट्रिल जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। ये इस महत्व को जानना आवश्यक है। और ऐसे समय में, कौन से समय में क्या काम करना चाहिए, if we train ourselves properly, we can change this course at will. हम लोग पुराने जमाने में लोग दंड का प्रयोग करते थे, उसको योग दंड बोला जाता है, जो अपने आर्म पिट के नीचे रखते थे। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर। 1968 में एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी डॉक्टर करमेलकर और डॉक्टर भोले ने एक स्टडी की थी, जिसमें 15 मिनट्स अगर वो आर्म पिट के नीचे अगर वो दंड को रखा, तो उसके बाद हम लोग जो हैं वो अपने इसको चेंज कर सकते हैं, कोर्स को चेंज कर सकते हैं एट विल। तो वो कोई जैसा भी काम करने की हमारी इच्छा है, with a view to establish a kind of what you call the harmony with the cosmic rhythm, so we can develop that what you call the rhythm of our, because this body is the miniature of this universe. जैसे कहते हैं ना कि ये पिंड है और ये ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड का ही ये एक छोटा स्वरूप है। It is a miniature of this universe, this cosmos. So whatever is present outside, that is present inside. तो उसके साथ, उस रिदम के साथ, so long we are keeping ourselves as separate, there is a problem. But जब हम लोग ये थोड़ा थोड़ा इन अभ्यासों के माध्यम से जानने लगते हैं, तो वो हमारा वननेस जो है वो होने लगता है, तो हम लोग उस रिदम के साथ जुड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस महत्व को जानना बड़ा जरूरी है कि कौन सा नोस्ट्रिल आपका काम कर रहा है, और उस समय में जब आपका ये सीक्वेंस, जब राइट नोस्ट्रिल काम कर रहा होता है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट ब्रेन काम करता है, और ये सीक्वेंशियल ब्रेन है और ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है। इवन दो व्हेन यू आर स्लीपिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो इट इज वर्किंग, इट नेवर स्टॉप्स। सो विद ए व्यू टू स्टॉप दिस, एंड ब्यूटीफुली इन पतंजलि योग सूत्र इट इज सेड दैट योगा चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स this the mode of behavior of chitta. Mode of chitta is a umbrella term that we'll discuss sometime later on if time permits. But at this point of time, we have to understand that people are mistaken in understanding this sutra also. They say that it is a stoppage of the mode of behavior of the mind stuff. No, it is not a stoppage. Our left brain is continuously working, and so long it is working continuously, we are not aware about the right brain. A right brain is said to be the intuitional brain. Your manas, your mind is a part of the universal mind.
Therefore, the mind is said to be, man is said to be a vibhu. Vibhu means all pervading. So when we stop the activity of the left nostril, we develop the activity of the right, the right hemisphere, the left hemisphere. It is when we stop this left brain, automatically our right brain starts working. So we are now able to understand the intuitive thoughts. Otherwise, we are always engaged and we are unable to understand these intuitive thoughts. So at some time you can observe that, उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में क्या टेलीपैथी है. Sometime our parents or our children, you think of calling them, but immediately you may receive the call. So इतना स्पीड में ये काम होता है यदि हम लोग उसमें, ये तो डे टू डे लाइफ में है. But if you try, you can understand that वो कैसा यूनिवर्सल ब्रेन का जो इंट्यूशंस अपने को मिल सकता है, उसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ये इसके पीछे का रहस्य है. जब हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा हो तो हमें क्या क्या काम करने चाहिए. ऑल पीसफुल परसूट्स को ऑप्ट करना चाहिए, रिलीजियस सेरेमनी में जाना करना चाहिए, और योग का प्रैक्टिस करने के लिए भी लेफ्ट नोस्ट्रिल को हमें चालू करना चाहिए. पता है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू होगा तो हमारा राइट हेमिस्फीयर जो है वो काम करता है, इंट्यूशनल ब्रेन हमारा काम करना शुरू करता है. तो बेयरिंग ऑफ, नया कोई अलंकार पहनना हो उसके लिए है, नए कपड़े पहनने हो तो उसके लिए भी यही है. ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट और चैरिटी में कुछ देना करना चाहते हैं तो ये भी लेफ्ट ब्रेन जब लेफ्ट नोस्ट्रिल जब चल रहा हो तो करना चाहिए. और यदि हमें कोई घर बनाना है तो उस समय भी हमें मार्क करना चाहिए कि हमारा लेफ्ट ब्रेन चल रहा, लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा होना चाहिए. मैं इसके थोड़ा सा ईड़ा, इसको चंद्र नाड़ी क्यों कहते हैं और उसको सूर्य नाड़ी क्यों कहते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा आपको, जैसा मैंने कहा कि जब आपका राइट नोस्ट्रिल चलता है, यानी सूर्य नाड़ी चल रही होती है, तो आपके वेयर टेयर्स होते हैं, एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी ब्रेकडाउन होता है, और उस ब्रेकडाउन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है. इसलिए इसको सूर्य नाड़ी के साथ सूर्य कहा गया. और वो चंद्र नाड़ी इसलिए कि जब वो एनाबॉलिक फंक्शन चलते हैं तो आपके इसमें एनर्जी स्टोर होती है और वो कूलनेस का इफेक्ट होता है, इसके लिए उसको हम लोग चंद्र नाड़ी बोलते हैं. तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी क्यों बोलते हैं, ये बहुत लंबा रहस्य है. जब नाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें विशेष डालेंगे. तो क्या क्या काम करना चाहिए when our left nostril is dominant, what kind of job we have to perform. So that is, it is prescribed in Shiv Sarode. There is a book recently, last year we have published that book. It was work long back, it was carried out, but it is published in last year. So that book is also available now. तो प्रैक्टिस अगर जब राइट नोस्ट्रिल चल रहा हो तो हमने म्यूजिक अगर जानते हैं करना है, म्यूजिक में जाना है, जब प्रैक्टिस करना है तो म्यूजिक का प्रैक्टिस जो है वो राइट नोस्ट्रिल के समय में शुरू करना चाहिए. आपको हॉर्स राइडिंग करनी है या और कोई राइडिंग करनी है तो दैट शुड आल्सो बी डन व्हेन योर राइट नोस्ट्रिल इज वर्किंग. फिजिकल एक्सरसाइज करनी हो तो आपको ये करना चाहिए. और इसके साथ माउंटेन्स के ऊपर जाना हो तो भी समझना चाहिए राइट नोस्ट्रिल आपका, पहले मार्क करना चाहिए कि राइट नोस्ट्रिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और फिर बोर्ड में या शिप में आपको बोर्ड होना है, बोर्डिंग इन द टाइम, एट द टाइम ऑफ दिस बोर्डिंग इन शिप और ए बोट, वो भी राइट नोस्ट्रिल होना चाहिए. शूटिंग में राइट नोस्ट्रिल होना चाहिए, स्नान करने में होना चाहिए, खाना खाना है तब इट इज सेड इन हट शिव संहिता अनिले अर्क प्रवेशे च भोक्तव्यम. खाना जब भी खाना हो तो आपका राइट नोस्ट्रिल डोमिनेंट होना चाहिए. और जब आपको पानी पीना है तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल ही डोमिनेंट होना चाहिए. तो इसीलिए आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाते समय आपका राइट नोस्ट्रिल डोमिनेंट होता है और उस समय अगर पानी पिया तो आग के ऊपर पानी डालने वाली बात होती है. इसलिए 1 घंटा के बाद पानी पीने की बात है. 1 घंटा के बाद पानी पिएंगे तो आपको उसका पानी का टेस्ट भी अलग लगेगा और जो आपको जरूरत महसूस होगी उस समय तो अपने आप पता चल जाता है कि अंदर वो थोड़ा सा शांत होना आवश्यक है.
ये और ब्रीदिंग के साथ अगर हम काम करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाते हैं। जब सॉफ्ट ब्रीदिंग होता है, स्लो ब्रीदिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग शांत हो जाते हैं और जो कुछ भी अंदर एक्टिविटी चल रही है। आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी अपने शरीर में ये कैसे काम होता है, कैसे खाना पचता है, कैसे क्या होता है, ये कोई भी जानता नहीं है। इसको जानना अत्यावश्यक है और ये जान गया कोई तो इसको ब्रीदिंग को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं करूंगा कि जब कभी भी आपका राइट नोस्ट्रल काम कर रहा होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करता है और उसमें आप देखते हैं तो बियर टीयर्स होते हैं। और जब कभी भी आपका लेफ्ट नोस्ट्रल काम करता है तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है, तो उस समय पैरा सिंपैथेटिक नर्वस, जिसमें आपको कूलिंग और काम। अब देखिए, कोई एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपको वार्म अप करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले शवासन में जाना है, शांत करना है अपने मन को, तब ये योग की एक्सरसाइज शुरू करते हैं लोग। इसलिए कि क्या क्या हो रहा है अंदर, उसके साथ आप एक हो जाए और समझ सकें। तो इस प्रकार से इन बातों को अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे, मैं थोड़ा सा योगिक सिग्निफिकेंस के ऊपर अगर आता हूं, तो हमारे योगियों ने, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट एवरी पर्सन ब्रीथ्स 21,600 टाइम्स, और वो क्या होता है, एट द रेट ऑफ 15 रेस्पिरेशन पर मिनट। 4 सेकंड में ये होता है पूरा कोर्स, एक यानी लेना छोड़ना एक का है, तो 21,600 बार हम सब लोग ये श्वास लेते हैं। अब ये समझने वाली बात ये है कि अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, यदि हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हम गुस्सा ज्यादा करते हैं, तो ये संख्या जो है ये बढ़ जाती है। और जैसे ये संख्या बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से हमारी लॉन्जिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये हमें समझना चाहिए, जितना इस संख्या को अगर हम कम करेंगे तो हो सकता है उतनी लॉन्जिविटी हमारी बढ़ जाएगी। अब इस बात को ध्यान में रखा गया, तो हम जब कभी भी गुस्सा आएगा हमें, उस गुस्से के समय में क्यों गुस्सा आता है, ये तो मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब आप, whenever your mind is agitated, you are unable to rationalize the things properly. I would give you the one example. Suppose there is a small lake, और उस लेक में if the wind is blowing, the surface of the water is disturbed. So long the water is disturbed, you will not be able to see the bottom part of the lake. But if the surface of the water is calm and quiet, you will be able to see the bottom part of the lake. Similarly, so long because of the thought ripples, we remain agitated, we do not recognize the activities of this body, what is going on in our mind or in our body. We are unable to recognize that. So whenever we are agitated, I wish that immediately you can check this. Immediately, if you shift your attention to your breath, immediately as you add your awareness to your breath, immediately your mind become calm and quiet. Immediately slow down. And it is said in Hatapradipika, chale bate chalam chittam nischale nischchalam bhavet. So long the breathing is moving, your mind is moving. So if you are interested to stop the activities of the mind of the left brain, if you are interested to stop the activity of the left brain, what you have to do is you have to stop the breathing. So if you stop the breathing, you will, अगर आपको गुस्सा आया है, उस गुस्से के समय में अगर श्वास को रोक दिया जाए अगर इमीडिएटली, और उस स्टीम तक रोका जाए, उस लेवल तक रोका जाए कि आपको अब लगे कि अगर मैंने अब श्वास नहीं लिया तो मेरी जान जा सकती है, इस लेवल तक अगर आपने उसको रोका, इमीडिएटली आपका गुस्सा भी शांत हो सकता है। उसके रीजन है, उसके कारण, उस गुस्से के कारण है। जैसा पतंजलि के दूसरे पाद में अगर आप 33वां सूत्र है, आप नोट कर सकते हैं, दूसरे पाद का 33वां सूत्र है कि whenever there is a negative thought surface, at that point, whenever negative thought they are surfacing, at that point of time, what you have to do is you have to
cultivate the opposite thought. But opposite thought cannot be cultivated unless you know the root of that negative thought. तो रूट को जानने के लिए 34वां सूत्र, अगला सूत्र जो है उसी पाद का, वो कह रहा है वितर्का हिंसादया कृत कार्यानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका. So either लोभ, either it is because of the greediness, because of the infatuation. जिस आता ही तब है. अब आप देखिए, छोटी सी बात है कि अर्जुन जो है, ये भगवत गीता की बात कर रहा हूं, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, और जब युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो गया तो वो कृष्ण से ये कह रहा है कि ये सारे के सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, किथ, दे आर ऑल माय किथ एंड किन. इफ आई किल देम ऑल एंड इफ आई गेट ऑल दिस किंगडम, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो मैं अभी लड़ना नहीं चाहता. वो विषाद योग की, उसको विषाद को भी योग कहा वहां. अब तात्पर्य ये कहने का कि सो लॉन्ग हम लोग जो है, अर्जुन के मन में क्या थॉट था? बिकॉज ऑफ द इनफैचुएशन ही वाज रिफ्यूजिंग टू फाइट. ये थॉट उसके ऊपर सरफेस पे आया क्योंकि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा. ही वाज नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ उसको पता था, लेकिन फिर भी वो अभी मना कर रहा है. और बाद में ये कह रहा है, खुद कह रहा है कि कार्पण्य दोषो उपित स्वभावा पृच्छामि त्वामहं समूढ़ चेता. समूढ़ चेता, आई एम टोटली इनफैचुएटेड, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो लॉर्ड कृष्णा तू ही मुझे बता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं. वो उस समय इस स्टेज में है वो. तो ये अर्जुन का एग्जाम्पल जो है हमारे सबके लिए, हम सब लोग अर्जुन है, हमारे लिए सबके लिए कोई सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन का कारण क्या है? सिचुएशन एक बात है, हमारा रिएक्शन उसके ऊपर किस प्रकार का होता है ये दूसरी बात है. देखिए इस समय इस पेंडेमिक क्राइसिस में, आज की डेट में अगर हम थोड़ा सा विचार करते हैं तो हम देखें कि आज हमें फिजिकली हम लोगों को आइसोलेट कर दिया गया, अपने अपने घरों में लॉकडाउन करके रखा गया है. हमारे इमोशंस का, हमारे मेंटल एस्पेक्ट का तो वो नहीं हो पा रहा है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये थोड़ा सा अगर हम इन बातों पे ध्यान दिया जाए अगर थोड़ा सा भी, तो हम लोग उन कारणों को जान सकते हैं कि ये किस कारण से. so long we are living in the boundary of me and mine. This is the only Arjun, when he was thinking that they are me, this is me Arjuna and they are mine. So long we are living in the boundary of me and mine, our whole energy is being wasted in that boundary. If we want to be a universal, अगर वो कंसेप्ट ऑफ वननेस हमें अगर महसूस करना है, उस एक्सपीरियंस करना है, तो हमको उस वॉल को तोड़ना होगा. और उस वॉल को तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी ब्रीदिंग के साथ काम करना, और कोई रास्ता नहीं है. जो आप वहां पर भी अर्जुन को जो सिखाया, ज्ञान भक्ति कर्म का जो मार्ग जो बताया, 6ठा अध्याय देखेंगे तो वहां पर भी ब्रीदिंग को लेकर के समम काया शिरोग्रीव होना जरूरी है. आपको अपाने जुहती प्राणम, प्राणे जुहती अपानम, ये सब बातें वहां पर सिखाई गई. तो इसी को लेकर के अगर कहें, अभी आप देखें, मैं वापस आता हूं कि एक एक ब्रेथ हमारा अगर देखें तो 12 अंगुल तक, 9 इंचेस तक जाता है. उसको महसूस किया जा सकता है. यदि हम थोड़ा सा भी शांत कर लें अपने आप को तो ये महसूस किया जा सकता है. और ये जो है इट रिक्वायर्स 4 सेकंड टू कंप्लीट इनवर्ड एंड आउटवर्ड कोर्स जो है ये करने के लिए. तो जैसे जैसे ये to shorten this length and increase the period of this complete course is the way to attain the long span of life. That is what is mentioned in Shiv Sarodaya. अभी मैं छोटी सी बात, अभी हम अलग अलग काम करते हैं. जैसे सिंगिंग के समय में हमारा 16 फिंगर तक जो है, ये 1 फुट तक हमारा श्वास जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है. और जब खाना खाते हैं तो 20 फिंगर तक किया जाता है. तो इसलिए खाना खाते समय भी वो भी आएगा 30 फिंगर्स तक और 36 फिंगर तक. यहाँ तक हमें समझना ये है, आपने देखा अगर दूसरे एनिमल्स, डॉग को देखिए उसकी आयु कितनी होती है, कछुए को देखिए उसकी आयु कितनी होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत ही स्लो ब्रेथ होती है उसकी, इसके लिए. तो हमें समझना ये है कि फास्टर द रेस्पिरेशन, शॉर्टर द लाइफ स्पैन, एंड स्लोअर द रेस्पिरेशन, लॉन्गर द लाइफ स्पैन. ये एक महत्वपूर्ण बात. अभी इसको शिव सरोदय में और बहुत अच्छी तरह से बताया गया, क्या क्या एबिलिटी हमारी बढ़ सकती है यदि हम उसको ठीक ढंग से अगर हम समझें और थोड़ा सा उसको कम करते चले जाएं, उसके
रिड्यूस करते जाएं उसके नॉर्मल लेंथ को, तो क्या क्या हमारे लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला, एक उंगल भी अगर हमने कम किया तो वो कहते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो सूदिंग, इट स्ट्रेंथन्स द नर्वस सिस्टम, यानी एक सूदिंग जैसा आपको अनुभव आ सकता है, अब एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इस प्रकार से अब जब हम 11 से उसको 10 कर लेते हैं तो अटेन्स आपको हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस का ओशन विच इज लाइंग विद इन योर सेल्फ, दैट ओशन कैन बी, वो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो ऐसा। तो इस प्रकार से अगर 9 से 8 कर लिया तो वाक सिद्धि, मतलब whatever you speak it becomes the truth, अगर आप जो भी कहते हैं वो सच हो जाएगा। ऐसे वो इस प्रकार के बहुत सारे, तो एंशिएंट योगियों ने इस बात को अच्छी तरह से समझा और समझ करके हमको एक टेक्निक दिया है जिसका नाम है प्राणायाम। तो अब ये प्राणायाम जाने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पर आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। योग का पर्पस है कि हम में जो, देखिए हमारा मन, हमारा शरीर, ये बाहर जो 5 तत्व हैं उन्हीं 5 तत्वों से जो बना है, यही 5 तत्व नरिशमेंट हो रहा है। वही मन हमारा बाहर भी है अंदर भी है, कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु बिकॉज ऑफ अवर मिसअंडरस्टैंडिंग इज परसेप्शन एरर, बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन एरर we have separated ourselves and we are recognizing ourselves, or each and every object is being organized, means perceived on the basis of the name and form। हम लोग वो बेस को भूल गए हैं और हम लोग यानी 2 सत्ताएं हैं, एक परमार्थिक सत्ता है और एक व्यवहारिक सत्ता है। तो व्यवहारिक सत्ता में हम लोगों ने उस व्यवहारिक सत्ता को ही हमने सब कुछ मान लिया है, उस परमार्थिक सत्ता को भूल गए। उस सत्ता को याद कराना ये काम है। तो याद कराना क्या है, तो एक हार्मनी होना हमारे में, हमारे शरीर में जो ये मिनिएचर है इस कॉस्मोस का, इसमें और बाहर में एक रिदम बैठ जाए, ये पर्पस है। और इस रिदम को बिठाने के लिए जो आर्ट है हमारे पास, जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है ये प्राणायाम और ये ब्रीदिंग के साथ काम करना, यही एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे शास्त्र से चुने हैं, वो अमर कोश में मैंने रेफरेंस दिया है, आप ये देख सकते हैं। तो इट इज सहनन। सहनन मीन्स आर्मर्ड। व्हेन द सोल्जर गोज टू द बैटलफील्ड ही इज टोटली आर्मर्ड। इसको आर्मर्ड बोले तो कवच है ये। तो अगर हम लोग इस ब्रीदिंग के साथ काम करना सीख जाएं और एक ब्रीदिंग के साथ काम करते हुए अगर हम इंटरेक्ट करते हैं आउटर वर्ल्ड के साथ, तो आप समझिए कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। उसके लिए अगर सपोज आज दिन टिल डेट you could not wear this jacket, you could not deal with your breath, तो आज अगर आप शुरू भी करते हैं तो जो आपने रॉन्ग हैबिट्स, शैलो ब्रीदिंग की हैबिट्स हो गई है। अब मैं एक बताना चाहता हूं कि यदि आपने रिदम देखना है, नेचुरल रिदम अपने ब्रेथ का, तो न्यू बॉर्न बेबी का ब्रेथ, उसका रिदम देखिए वो क्या ब्रेथ होता है। हम लोगों का सबका, बिकॉज ऑफ द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड अदर मेंटल डिस्टर्बेंसेस, वी हैव डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ शैलो ब्रीदिंग। तो इसको ठीक ठाक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिसके माध्यम से वो किया जा सकते हैं। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कह सकते हैं, जो को हम लोग ध्यान भी कहते हैं। तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास, सबके पास वो शक्ति है, सबके पास वो एनर्जी है, वो डिविनिटी, each and every one of us is having that divinity with a view to unfold this divinity। हमको जरूरत है थोड़ा सा अपने फोकस को बनाने की, और वो फोकस जो मैग्नीफाइंग जैसे ग्लास होता है, ऐसे मैग्नीफाइंग जैसा ग्लास, ऐसा अगर फोकस हो सकता है, तो फोकस तभी आएगा जब हम इस ब्रीदिंग के साथ डील करेंगे, तभी हमारा फोकस भी बनेगा। जैसा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कनाल पानी बह रहा है और दोनों तरफ दीवार है। अब इस पानी पूरा भरा हुआ है इस कनाल में, एंड इफ यू जंप इनटू इट, ऑटोमेटिकली दिस वाटर विल टेक यू डाउन। लेकिन अगर इस दीवार को तोड़ दिया जाए तो वाटर विल बी डिसिपेटेड, वो फैल जाएगा और आप इजीली उस पे वॉक कर सकते हैं। परंतु यदि आप भरी हुई कनाल में दोनों वो है, तो वो फोकस है,
तो वाटर के करंट के साथ आपको मुश्किल होगा अपने आप को संभालना, वो ले जाएगा आपको नीचे की तरफ। ऐसा ही है कि अगर आपने इस ब्रेथ के साथ काम करना शुरू किया तो ये ऐसा फोकस आपको देगा कि आपकी वो ध्यान की जो गहराइयां हैं उसमें आप जा सकते हैं। वो इस बात को यहाँ हमने इस प्रूफ में रखा है। संगति बोले तो रिदम की बात है। जैसा मैंने कहा कि इस जगत की अपनी रिदम है। अब इस रिदम को समझना कैसा है, डे टू डे लाइफ में कैसा अप्लाई करना है। देखिए, मौसम के अनुसार हम लोग अपना खान पान बदलते हैं, मौसम के अनुसार अपने कपड़े रहन सहन बदल लेते हैं। ऐसे ही इस बाकी की बातें भी हमें उस रहन सहन को उसको तदनुसार बदलना चाहिए, उस रिदम के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो किया तो ही हम लोग जो हैं वो इसके साथ एक तारतम्य, एक हार्मनी, एक बैलेंस बिठा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एजिटेट रहते हैं। तो इसलिए ये रिदम को जानना और उस रिदम के साथ जुड़ना। इफ वी आर लिविंग इन ट्यून विद मदर नेचर, देन इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस, बिकॉज दिस मदर नेचर ये अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह है। सो वी हैव टू लिव इन ट्यून। और दूसरे शब्दों में, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैविंग ए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। आपका किसी का बात प्रकृति होगी, किसी की पित्त प्रकृति होगी, किसी की कफ प्रकृति होगी, किसी का श्लेष्म हो सकता है, बात पित्त भी हो सकता है, बात कफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, बहुत सारे प्रकार हैं उसके। तो उसके अनुसार अगर आपने अपना खान पान रहन सहन बनाया तो उस रिदम के साथ चलना हो गया। यही है वो रिदम के साथ जीना, उस ट्यून। we have to live in tune with that mother nature. This is what is, say for example, अगर किसी का बात प्रकृति है तो बात को एग्रीवेट करने वाले जो भी पदार्थ हैं उनको हम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, और जो बात को सबसाइड करते हैं वो पदार्थों को चुनना चाहिए। इसका मतलब आपने वो रिदम के साथ जीना चालू कर दिया। तो हर आदमी का अपना रिदम है, everyone has its own institution and own temperament. तो उसके अनुसार ही जो चलेगा तो वो होगा। युक्ति के रूप में बहुत सारे मेथड्स हैं, ये हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। पतंजलि योग के तीसरे पाद में अगर जाएंगे तो सारे के सारे वो चर्चा कभी होगी उसके बारे में। अब मैं सीधा आता हूँ, प्राण बोले तो अगर पतंजलियन कंसेप्ट में हम समझेंगे तो प्राण बोले तो ब्रेथ है वो, तो ब्रीदिंग एक्टिविटी है ये। पतंजलि ने उसको कॉस्मिक एनर्जी या लाइफ फोर्स नहीं कहा, सिर्फ कहा कि ये एक ब्रीदिंग एक्टिविटी है। अगर आप इस ब्रीदिंग एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, जेंटल बना लेते हैं, तो वो कहते हैं कि देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म। दीर्घ अगर इसको लंबा बना लिया जाए, खूब लंबा कर लिया जाए और खूब सॉफ्ट बना दिया जाए, जेंटल बना दिया जाए, तो होगा क्या, एक समय आएगा कि दोनों में कट ऑफ हो जाएगा, कि जैसा एज इफ के ब्रीदिंग है हो ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में। तो इसके लिए इसको कहेंगे कि जब हम प्राणायाम, प्राण और आयाम दो शब्द हैं, तो प्राण को अगर हम ब्रेथ समझते हैं, ब्रीदिंग एक्टिविटी समझते हैं, तो आयाम का मतलब समझना होगा कि पॉज इन द मोमेंट ऑफ ब्रेथ। ये है वो प्राणायाम। और ये कैसा होगा ये आगे चर्चा करेंगे। अगर हम हठयोगिक कंसेप्ट के अनुसार जाएं तो देखिए उन्होंने इसको एक ही एनर्जी है, और इस एनर्जी को उन्होंने कॉस्मिक एनर्जी, लाइफ फोर्स, साइकिक एनर्जी, तो अगर इसको हम इस रूप में समझते हैं तो आयाम का मतलब होगा उसे कंट्रोल करना, धीरे धीरे उसके ऊपर अपना कंट्रोल लाना, और कंट्रोल ला करके बाहर और अंदर के रिदम को एक जैसा बनाना। ये है पर्पस हठ योग के अनुसार। इसलिए उन्होंने बहुत सारा, अब ये आगे जो फेज देख रहे हैं आप, पूरक, रेचक और कुंभक, तो ये पूरक जो है, अब आप जरा थोड़ा सा विचार करेंगे कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग विदाउट एनी अवेयरनेस, दिस इज ए प्रोसेस, दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना, इट इज गोइंग ऑन। बट व्हेन यू ब्रीथ विद अवेयरनेस, व्हेन यू इनहेल विद अवेयरनेस, it becomes puraka. When you exhale with awareness, it becomes rechaka. When you retain the prana inside or outside, it is called kumbhaka. It is called, but your awareness must be added to it, then only it will be retention. Otherwise कभी-कभी हम लोग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है ये, और जब कभी भी ऑटोमेटिक स्टॉप, हमें पता भी नहीं होता है कि ये स्टॉप हो गया, हमें पता नहीं होता कब हमें लंबा सांस लेने की जरूरत पड़ जाती है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है बॉडी। तो इसको इतना नॉर्मल ब्रीदिंग में और इस योगिक ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है, तो आप अपनी
योगिक ब्रीदिंग में अपने इनहेलेशन के साथ, एक्सहेलेशन के साथ, रिटेंशन के साथ आपका अवेयरनेस जुड़ा हुआ है। आप जागरूक हैं। आप जैसे इनहेल कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप इनहेल कर रहे हैं, आपने ऐड किया है अपनी अवेयरनेस को। आप फील कर सकते हैं कहां तक स्पर्श को महसूस करते हैं। इतना तक आ जाता है कि जब आप नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो आपको इनहेल करते समय कूलिंग टच फील कर सकते हैं, और जब आप छोड़ते हैं श्वास तो आपको गर्म हवा का स्पर्श महसूस हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपनी अवेयरनेस को ऐड करेंगे तब, अदरवाइज ये मुश्किल होता है। लेकिन ये शांत हो जाता है जब सॉफ्ट हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता। तो ये फेज है 3। इन फेज को अभी यहाँ में पूरे साहित्य का अलोड़न करने के बाद, पूरे स्क्रिप्चर को देखने के बाद, ये जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है, whatever is happening in this world, चाहे वो आपके हीट के रूप में हो, चाहे वो लाइट के रूप में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म के रूप में हो, ये सारे के सारे मैनिफेस्टेशन जो हैं वो उसी ब्रेथ के हैं, उसी प्राण के हैं। और वो प्राण जो है वो कहाँ से स्प्रिंग हुआ है? हमारा शास्त्र कहता है कि ये हमारी आत्मा से ही स्प्रिंग हुआ है। So therefore breath प्राण is ब्रह्मन, ऐसा वेदांत सूत्र में कहा गया। All forces, all powers and प्राण springs from the fountains or from the common source, and that source is nothing but the आत्मन तत्व। वही एनर्जी का पुंज जो है वही ब्रह्मन है, वही आत्मन है। और प्राण is sum total of all latent forces, ऐसा सभी कुछ प्राण ही प्राण है। और लास्ट में ये कह दिया कि अगर जो कुछ भी मूव कर रहा है इस जगत में, या जिसमें भी लाइफ दिखाई पड़ रहा है, ये सब एक्सप्रेशन जो है वो उस मैनिफेस्टेशन, उस प्राण का ही मैनिफेस्टेशन है। सारे का सारा जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब प्राण है। इसी प्रकार से हठयोग वालों ने भी उसी बात को स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा कि ब्रीदिंग जो है ये मैनिफेस्टेशन है उस एनर्जी का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी हर मोमेंट के लिए और हम हर सेंसेशन के लिए। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी हर एक्टिविटी के लिए। सो इट मीन्स दैट दिस ब्रेथ नॉट ओनली enlivens this body but responsible for each and every function of the body. This is to be understood. तो होगा क्या अगर इसको कंट्रोल कर लिया? So by controlling the movement of breath, one can develop harmony between physiological functions with psychological functions by influencing and improving the functions of our lungs and heart, and thereby the harmony between individual existence and the cosmic existence. This is what is the purpose. So thus the expansion of individualized pranic energy into cosmic energy is said to be pranayam. यही है काम उसका, उसको समझना और तदनुसार उसके साथ उस रिदम के साथ एक हो जाना। ये हमारे एंशिएंट योगियों ने इस बात को समझा और उन्होंने हमको ये दिया। मैंने जैसा कहा कि पतंजलि का पर्पस है, देखिए मैंने कहा कि चित्त वृत्ति निरोध को लोगों ने बड़ा मिस्टेकिंगली उसको स्टॉप करने की बात कर ली। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट कर लीजिए पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद के 12वें सूत्र के अंतर्गत जो व्यास भाष्य में लिखा गया है, वो लिखा गया है कि चित्त नदी, आवर होल साइकी, चित्त इज अम्ब्रेला टर्म। बहुत कुछ है उसमें, आपके सारे के सारे पूर्व जन्मों के जितने भी संस्कार वासनाएं हैं, दे आर ऑल्सो इम्प्रिंटेड ऑन दिस। सो अनकॉन्शियस भी है उसका पार्ट, सबकॉन्शियस भी है और कॉन्शियस पार्ट भी है। सो एवरीथिंग, इसलिए इसको अम्ब्रेला कहा है। तो उन्होंने कहा है, व्यास जी ने कहा है, वो 12वें सूत्र के नीचे आप पढ़ेंगे, चित्त नदी उभयतो वाहिनी। ये जो हमारी साइकी है ये 2 दिशाओं में बहती है। बहती टेक्निकल शब्दों, वो क्लिष्ट व्यापार भी है उसका और अक्लिष्ट व्यापार भी है, यानी नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ये नेगेटिव ज्यादा बहता है क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण ये एक दिशा में बह रहा है। पर्पस है साधना का इस फ्लो को उस दिशा से हटा करके दूसरी दिशा में लगाना। दिस इज द पर्पस, ये है मीनिंग उसका चित्त वृत्ति निरोध का।
अगर हमने किया तो क्या होगा, तो ये कौन सी दिशा में ले जाएगा, हमको शांत करेगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, तो हम लोग जरा गहराई से बात को समझ सकेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारे डिसीजन अच्छे होंगे, हम लोग जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर जाता है तो वो हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए कहा कि वी गेट आइडेंटिफाई विद दैट विच वी आर नॉट, एंड व्हेन वी आर, वो आइडेंटिफाई हो गया तो वी आर लॉस्ट, फिर वो भूल जाते हैं हम कहीं भी। इसलिए द पर्पस ऑफ साधना इज टू रीचैनलाइज द फ्लो ऑफ आवर माइंड that is flowing towards the negative side or towards me and mine. Somewhere or other we have to understand it and we have to rechannelize, redirect towards the other side. That is the purpose, and it can be done only with the help of this breath. वैदिक पीरियड में भी इसका महत्व कैसा था, लोग मंत्रों का उच्चारण करते थे और वो जब अभ्यंतर कुंभ को ज्यादा तवज्जो दिया गया उस समय में, परंतु आप देखेंगे कि उस समय में इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये प्रेवलेंट थी साधना, तो उस समय उतना उसको इंडिपेंडेंट प्राणायाम के लिए साधना का नाम नहीं था उसमें। तो ये स्मृति पीरियड में आकर के लोग थोड़ा सा मंत्रों के साथ उसका करने लगे अभ्यास, कि जब आप श्वास लेते हैं तो आप विष्णु का ध्यान कीजिए, जब आप श्वास रोकते हैं तो ब्रह्मा का ध्यान कीजिए, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो महेश का ध्यान कीजिए, ऐसे। और गायत्री मंत्र का, व्याहृतिस का, और उसके बाद शिरस का। ये शिरस गायत्री मंत्र क्या है, तो गायत्री मंत्र से पहले भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृति है, और गायत्री मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये। और शिरस क्या है, आपो ज्योति रसोमृतम। तो ये 3 भागों में विभाजित है ये मंत्र भी, ये सवितृ उपासना जिसको बोलते हैं हम लोग। और उस समय लोग जो है वो प्राणायाम का अभ्यास इसके साथ किया करते थे, ये स्मृति पीरियड। और सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति में आया, प्राणायाम को परम तप कहा। यानी जितने भी पातक हमने, यानी जितना भी हमारे इम्प्योरिटीज हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, उसको दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय भी इस प्राणायाम परमं तपा मनुस्मृति में कहा गया। पौराणिक लिटरेचर में आकर के इसका विशेष डेवलपमेंट हुआ, एक्सप्लोर हुआ, जिसमें हमको मात्राओं का ज्ञान दिया गया। तो मात्रा क्या है, आपकी आंख, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, ये सब इसमें लिखा हुआ, ये आपको समझ में आ जाएगा। और एक्चुअली एक मात्रा 4 सेकंड का होता है। तो अगर वो जितना भी आप उसको शुरुआत में अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते समय अगर आपने उसको गिनती में लिया, तो आपको अगर 10 बार अगर आपने गिना है तो 20 बार उसको रोकना चाहिए, और 20 बार रोकना चाहिए, और जितना आपने लिया उससे ज्यादा छोड़ना चाहिए, तो 20 बार छोड़ना। तो पहले शुरुआत में ये मात्रा का जो है, जैसे पिछली इसमें बताया गया, 1-2 की मात्रा लिया, लेना छोड़ना, बीच में कुंभक की बात नहीं है। फिर जब कुंभक शुरू किया तो 1-2 की मात्रा, यानी लेना 1, रिटेन करना 2 और छोड़ना 2। छोड़ना डबल होना चाहिए, यानी ऑलवेज, यानी एक्सहेलेशन शुड बी डबल इन कंपैरिजन टू द इनहेलेशन, दैट इज टू बी। और ये डे टू डे लाइफ में भी इसको सीखना चाहिए, वही मात्रा की बात यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये पतंजलि के बारे में हमने कह दिया आपको कि जब आपका मन शांत हो जाता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, गति विच्छेद हो जाना, उसमें मूवमेंट में कट ऑफ हो जाना, ये प्राणायाम है। और ये आप अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप फील कर सकते हैं, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो ब्रीदिंग बहुत धीरे चलता है, जेंटल हो जाता है। ये पर्पस है मन को शांत करना, और जब ब्रेथ शांत हो जाएगा तो मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। ये बात को महर्षि पतंजलि ने तवज्जो दिया है, ये मोर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेकर के डील किए हैं। आगे बढ़ते हैं हठयोग के बारे में। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही हठयोगियों ने ही ये तरकीब दिया, ये हमको तरीका बताया कि हम, इट इज नॉट सो इजी टू कंट्रोल द माइंड। इवन अर्जुन इन भगवद गीता सेज it is very difficult to control the mind, Krishna chanchalam hi mana Krishna paramathi balbadridam tasyam nigrahamanye vayurib sadushkaram। भगवान ने भी स्वीकार किया, कृष्ण जी ने स्वीकार किया, असंशम महाबाहु, whatever you said, it is correct, it is very difficult to control the mind, but
योगियों ने जो ये टेक्निक दिया कि इस ब्रीथिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप अपने माइंड को अपन डे टू डे लाइफ में आप महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Whenever you feel that your mind is agitated, immediately shift your attention towards your breathing and you will see that mind immediately slows down automatically. तो ये जो है तो deliberate stoppage of breath soon after inhalation has become the most significant. Therefore आप देखेंगे कि हठप्रदीप का पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा आसनम कुंभकम चित्रम, कुंभक नाम दे दिया प्राणायाम को, यानी कुंभक का ही महत्व बताया गया. और उसमें कुंभक में आपको टॉलरेंस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट करने का क्षमता बढ़ती है आपकी, और यही क्षमता टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ गई, मन शांत होता है. इसलिए आपको एक समय था जब लोग कहते थे कि प्राणायाम के प्रैक्टिस में ऑक्सीजन का वैल्यू होता है, लेकिन नहीं. बाद में ये पता चला बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद. स्वामी कुवलयानंद जो पहले व्यक्ति थे, 1924 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू ज्यादा है. जब आप ये टॉलरेंस बढ़ जाता है तो आप काम एंड क्वाइट हो जाते हैं. यही है पर्पस वो कुंभक करने का. और इसमें भी दोनों प्रकार की धाराएं चलती रही. आपको सगर्भ प्राणायाम जब आप मंत्रों के साथ करते हैं और मंत्रों के रहित करते हैं तो अगर्भ प्राणायाम, जैसे मोर सेकुलर है हठप्रदीपिका, वो किसी मंत्र के बारे में बात नहीं करती, परंतु गैरंट संहिता में जाएंगे तो मंत्रों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने की, दोनों तरह का अभ्यास करने की बात कही गई. सहित कुंभक क्या होता है, केवल कुंभक क्या होता है? तो सहित कुंभक वो होता है जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ करते हैं. When you practice along with inhalation and exhalation, पूरक and रेचक, टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ठीक है, तो उस समय वो सहित है. जब बिना रेचक और पूरक के होता है तो वो केवल कुंभक कहलाता है. Furthermore, the pranayam found linked with the mysterious process of Kundalini awakening. तो वो कुंडलिनी शक्ति क्या है? ये जो कॉस्मिक प्राण है, जो इस शरीर में, हमारे शरीर में कंसील्ड है, that प्राण is revolving at the perineum part in a kundalakar and therefore circular form mein, and therefore this energy is called kundalini shakti. Actually speaking, हमारे मन में और हमारे शरीर में, so this is a bridge. Breath is a bridge between the mind and the what you call the body. Similarly, so this breathing is a bridge between the cosmic energy and the individualized and cosmic energy. This is a bridge. तो रिचार्ज करने का काम जो है ये ब्रीदिंग कर रहा है. तो ये ब्रिज जो है यही जोड़ता है. ब्रीदिंग जी इज ए ब्रिज विच, उसके कारण ये रिचार्ज होता रहता है. उस प्राण को ही टैकल करना ये महत्वपूर्ण है. और वो प्राण को कैसे टैकल करना है, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके बताए गए. जरा एसोसिएटेड कंसेप्ट्स के बारे में, क्योंकि अगर प्राण को डील करना है तो हमारे शरीर की एक्टिविटी को भी थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है, तो ये जानना भी जरूरी है. तो सबसे पहले हम प्राण को लेते हैं. प्राण, ये कॉस्मिक एनर्जी इज वन, बट व्हेन इट वर्क्स एट द डिफरेंट प्लेसेस, तो ये इसका बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं. इसलिए 5 महाप्राण हैं और 5 उप प्राण हैं. तो सबसे पहले ये सब कंसेप्ट हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको एक एक करके जरा थोड़ा सा शॉर्टकट में हम करते जाएंगे. अब प्राण के बारे में कहें तो प्राण पहला, जिसका लोकेशन है नोज से लेकर के चेस्ट तक. दिस पर्टिकुलर प्राण इज लोकेटेड फ्रॉम नोज टू द चेस्ट. whatever is happening, whatever you take in, whether it is a water, whether it is a food, whatever, or even sensory input, you will not be able to take the sensory input without the help of this particular prana. So it is located from nose to the chest. इसका काम है वो जो भी होना है, हो रहा है, it is happening because of this. जो भी आप ले रहे हैं, चाहे वो सेंसरी इनपुट हो, चाहे वो कुछ भी हो. उसके बाद मैं एक उदाहरण देता हूं. द फूड स्टफ, जो एक निवाला आपने माउथफुल आपने चबाया, उसको आपने निगलने का काम, उसको स्वेलो करने का काम, यू कैन नॉट स्वेलो दैट पर्टिकुलर माउथफुल व्हाटएवर आफ्टर च्यूइंग विदाउट द हेल्प ऑफ दिस प्राण. और वो एसोफेगस से आपके नेवल रीजन तक जाता है. और वो एक फैक्ट्री है, यहाँ समान नाम का प्राण है जो उसको चर्निंग एसिमिलेट करता है.
इक्वलाइजिंग फोर्स है वो, जिसको आप गैस्ट्रिक फायर बताते हैं। यहाँ पर वो एंड जो वट एवर यू ईट, ऑल ऑफ अस वी आर ईटिंग 4 kinds ऑफ फूड एवरी डे। व्हाट इज दैट? च्यूइंग फूड, लिक्विड फूड, सक्ड फूड एंड ड्रिंकिंग फूड। तो ये पेय है, चर्ब्य है, लेय है, ये चारों प्रकार का फूड जो है हम लोग सब लोग खाते हैं। तो शिव संहिता में बहुत सुंदर बात कही है कि ये 4 प्रकार का चतुर्विधस्य अन्नस्य रसास्त्रेधा विभज्यते, 3 रसों में ये विभाजित होता है। वो रस कौन कौन से हैं? उत्तम कोटि का रस है पहला रस, जो आपकी सटल बॉडी को, आपके सटल बॉडी के 17 अकॉर्डिंग टू योग, सांख्य योग 17 तत्व हैं। आपकी मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान इंद्रियां सब उसमें आ गया। 17 तत्व हैं। वेदांत के अनुसार 18 है और इसके अनुसार 17 है। उसका नरिशमेंट जो है वो उत्तम कोटि, वो 3 रसों में विभाजित हुआ। उत्तम कोटि का रस, दैट इज द एसेंस ऑफ द फूड दैट नरिश योर सटल बॉडी। द मिडिल पार्ट ऑफ दैट रस, इट नरिशेस योर फिजिकल बॉडी, और धातुओं को करता है। एंड रेस्ट इज द वेस्ट मटेरियल दैट गोज आउट फ्रॉम द बॉडी। अब आप देखिए, नेवल रीजन से नीचे आपके एनएस तक ये जो है वो अपान प्राण का स्थान है। ये अपान प्राण जो है, ये जो यहाँ पे फैक्ट्री में हुआ, तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो इस पूरे शरीर में व्यान नाम का प्राण है जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स व्यान हेल्प्स यू टू नरिश योर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स दैट एनर्जी जो यहाँ से जो मिला है रस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो व्यान नाम का प्राण काम कर रहा है। अपान जो है वो बाहर जो भी एक्सपेल आउट करते हैं आप, और जो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूल यूरिन की बात है या आपका स्वेटिंग है, आपका म्यूकस है, वट एवर यू एक्सपेल आउट, इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ अपान प्राण। और उसके बाद आता है उदान प्राण, जो जिसका लोकेशन जो है वो हार्ट से लेकर के हेड तक का है। और ये जो है जितने भी हायर एक्टिविटीज हैं आपकी, एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सारे का सारा ये उदान प्राण कंट्रोल करता है। और एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है, जो प्रश्नोपनिषद में जो 10 उपनिषद हैं, मेन प्रिंसिपल उपनिषद हैं, उसमें एक प्रश्नोपनिषद है, उसमें एक आता है कि when so called death comes, so this pran helps us to detach us from this body. So ये उदान प्राण वो काम भी करता है। तो ये जो है आपने समझा कि जो इससे पता चलता है कि ये प्राण जो है, जिसको आप ब्रेथ के रूप में जानते हैं, ये ना केवल हमारे शरीर को, इट नॉट ओनली इनलाइवन्स आवर बॉडी बट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। जिससे श्रद्धा बनेगी, हम लोग इस तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। अभी उक्त प्राण की बात कर लेते हैं। ये नाग प्राण है। आप खाना खाते हैं, व्हेन यू ईट एट, तो आपके स्टमक में जो खाली जगह थी वो भरी जाती है। तो भरने के बाद जो प्राण, जहां कहीं भी खाली जगह होती है वहां हवा होती है, तो वो हवा बाहर आती है, वो नाग के जैसी बाहर आती है, इसलिए इसको नाग के साथ, तो ढकार के रूप में, बेल्चिंग के रूप में। सो दिस बेल्चिंग इज नॉट अप्रिशिएटेड इफ यू गो टू द यूरोपियन कंट्रीज। दिस इज बेल्चिंग इज नॉट अप्रिशिएटेड, बट आई सजेस्ट दैट दिस शुड नॉट बी सप्रेस्ड. Let this air come out, because if you suppress it, it will go to the rectum part and it will create a gaseous problem, and that is very difficult to come out of. So therefore this air should not be suppressed. Let it come. डकार आती है तो उसे आने दीजिए, कभी रोकिए नहीं. उसके बाद आपके आंखें जो ब्लिंक कर रही हैं, it is only because of the help of this कूर्म प्राण. आपका हंगर और थ्रस्ट, आपको एनर्जी की कब जरूरत है, कब पानी की जरूरत है, ये कौन महसूस कराता है? ये क्रिकल नाम का प्राण है शरीर में, जो आपको ये याद दिलाता है. स्नीजिंग आपकी यानिंग, इट इज कंट्रोल्ड बाय द देवदत्त प्राण. और धनंजय प्राण की स्टोरी जरा थोड़ी लंबी है. जब कभी भी व्हेनेवर देयर इज ए इंजरी, यू नो, दिस एरिया स्वेल्स. ये बैटलफील्ड क्रिएट करता है जिसमें रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स आपके जो है वो युद्ध करते हैं, बैटलफील्ड तैयार करता है ये धनंजय प्राण. ये बॉडी आपकी स्वेलिंग आ जाती है शरीर में जहां कहीं भी इंजरी होती है. आपने यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पर्सन ड्रॉन इन ए वाटर, आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन कम्स ऑटोमेटिकली टू द सरफेस. वो प्रोन पोजीशन में आदमी ऊपर आ जाता है. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ धनंजय प्राण द पर्सन कम्स अप, नहीं तो वो नीचे रह सकता है. तो डीकम्पोजिशन जो है ये बॉडी का,
वो धनंजय प्राण, तो मरने के बाद भी ये प्राण जो है वो शरीर में रहता है, उसी की सहायता से हम ये डिकम्पोजिशन भी होता है। अभी हम थोड़ा सा, अगर आप ये करना चाहते हैं, ब्रीदिंग के साथ गेम करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, इसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खाते क्या हैं, आप खाना किस प्रकार का खाते हैं। ये नहीं है कि अगर आप खाना नहीं चेंज करेंगे अपना और आप ब्रेथ के साथ डील करना चाहते हैं तो इतना इजी नहीं है, क्योंकि देयर मे बी प्रॉब्लम। इसलिए क्वालिटी ऑफ फूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके लिए मैं कहूंगा कि जो इसके साथ काम करेंगे, एनर्जी के साथ जो भी काम करेगा, अगर वो शुरुआत में खिचड़ी खाते हैं, मूंग की खिचड़ी, दैट इज मोस्ट, घी के साथ खानी चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल, क्योंकि whenever you work with the energy, it creates heat in the body, so with a view to subside that heat, it is better to take that kind of food, but it fresh food होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी, कुछ भूख रख के खाना चाहिए, मुख्य मुद्दा ये है। तो अपनी भूख को 4 भागों में विभाजित करें, 2 भाग खाना खाएं, खाना वो नहीं खाएं जो जंक फूड चल रहा है, वो नहीं खाना, ठीक से जो भी हम समझते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए, और 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग खाली छोड़ना। अभी हमने समझा कि खाना पचाने में भी वो समान नाम का प्राण ही काम करता है। तो कभी भी हम अगर बफे डिनर में भी अगर जाते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और प्रेयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। खाना कैसा, फ्रेश फूड होना चाहिए। अगर आपको कौन कौन पदार्थ नहीं खाने चाहिए, इसकी लंबी लिस्ट जो है हठ प्रदीप का गैंड संहिता में दी हुई है, आप वो रेफर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। ये क्वांटिटी की बात मैंने कर दी है। और प्रेयर करने, खाना खाने से पहले हमें प्रेयर करना क्यों आवश्यक होता है। पुराने समय में भी हम लोग करते थे, पानी लेकर के ऐसा थोड़ा सा पानी लेते थे कि एक एसोफेगस को थोड़ा सा गीला कर लेते थे, ताकि हमें वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो स्वेलो करने में, तो वो गीला करते थे हम लोग उसको, और भूत शुद्धि करते थे वो हम लोग। ये प्रेयर जो है, ये आपके, इट रिलीजेस योर ऑल काइंड्स ऑफ टेंशंस, एंड व्हेन देयर इज नो टेंशन, आपका पता होना चाहिए कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं जब खाना चबाते हैं तब से शुरू हो जाते हैं एक्सक्रीट होना। तो इसलिए हमको शांत मन से खाना खाना चाहिए, और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो हमें ये सोच करके करना चाहिए कि हमारे अंदर जो कहा, इसमें कहा है, ग्रंथों में कहा है, भुज्यते शिव संप्रीति, जो शिव जो अंदर बैठे हैं वो अंदर बैठे रहें, वो प्रसन्न चित्त रहें, किसी बाधा ना पहुंचे, उनकी तृप्ति के लिए खाना खाना चाहिए। तो उनको प्लीज करने के लिए खाना है, अपनी भूख शांत करने के लिए नहीं खाना है। ऐसा भाव करके अगर हमने खाया तो उस खाने का, अगर आप एजिटेटेड हैं, टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, तो ये आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उस जो टीवी में जो कुछ भी प्रोग्राम चल रहा है आपका वो खाने में भी आएगा। इसलिए खाना बहुत ही शांत और एकांत में बैठ के खाना चाहिए, उसका प्रभाव बहुत अलग होता है। इसलिए प्रेयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए। जहां तक नाड़ियों की बात है, शॉर्टकट में बोलूंगा, नाड़ी बोले तो चैनल हैं, दीज आर दी सटल एनर्जी चैनल्स। आप अगर आपके पास रिमोट है, उस रिमोट को आपने दबाया, आपके मोबाइल है और वो नंबर आपने लगाया, टावर से और इस मोबाइल तक एक स्पेस, इस स्पेस में एक पाथ बना है जो हमें विजिबल नहीं है, परंतु वो इसी इंस्ट्रूमेंट को विजिबल है। तो मुझे यहाँ ये कहना है, योग इज ए प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। If you practice it, then only you will be able to actualize that what these nadis are. It is said that there is a kand in Mooladhara. Out of that kand, all nadis are sprouted up. So इस कंद से ही सब कुछ निकला हुआ है, और नाड़ियां वहां से निकली, और इनको जहां कहीं भी क्रिस क्रॉस होता है वहां पर चक्रों की बात आती है। जहां पे जैसे जंक्शन, रेलवे जंक्शन होता है, जैसा इन नाड़ियों का जब क्रिस क्रॉस होता है तो वो उसको चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र है, या स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र, आगे चर्चा करेंगे। तो ये सारी की सारी नाड़ियां, तो मुख्य है ईड़ा लेफ्ट नाड़ी, पिंगला राइट नाड़ी, और बीच की है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी मैंने जब कहा कि जब ये कोर्स चेंज होता है ऑटोमेटिकली वो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए चलती है, उसे अगर मार्क करेंगे हम लोग,
वो सीक्रेट है, उसे मार्क करेंगे, उसका लंबा समय लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे और जब वो चल रही हो तो कुछ मेडिटेशन में अगर बैठेंगे या किसी को आप कुछ आशीर्वाद देंगे तो देखिए उसके आशीर्वाद का फल क्या होता है। प्रैक्टिस करके देखिए, या आपकी यात्रा सफल हो, ये छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे तो उसका तो ये नाड़ियां जो हैं ये सटल, जिससे वो एनर्जी जैसे पानी आपके पाइप से फ्लो करता है, तो ये पाइप्स हैं, ये इनको कभी भी मॉडर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुसार ये आर्टरीज वेन्स नहीं है, ये इवन दो आयुर्वेद की शीर्ष हर्ष भी नहीं है, इनको हम लोग सटल एनर्जी चैनल जो इसको करेगा वही सब। ये 10 नाड़ियों का वर्णन हमने सामने दिया है, कहां से नेवल रीजन से कहां तक जाती हैं, कहां कहां, ये आप आगे देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा। ये चक्रों की बात, चक्रों के बारे में मैंने विशेष आपसे कहना चाहता हूँ। मूलाधार जो चक्र, आगे मैंने सब वर्णन दिया है। मूलाधार चक्र जो है आपकी स्टेबिलिटी, जब कभी भी आप स्टेबल नहीं समझते हैं तो समझना चाहिए आपका मूलाधार चक्र जो है वो डिस्टर्ब है। सेंसुअलिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब आती है तो मूलाधार चक्र से रिलेटेड है ये मामला, ये आपने समझना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र में रिप्रोडक्शन के साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंथुजियाज्म, आपकी रिलेशनशिप्स, वायलेंस, एडिक्शंस, बेसिक इमोशनल नीड्स, ये सारी की सारी ये स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से ही एक्टिवेशन होता है इसका, ये हमें समझ। तो जो जो इमोशन आ रहा है, जो जो एक्टिविटी हो रही है, उसे समझना चाहिए इस समय कि कौन सा चक्र इस समय एक्टिव है। मणिपुर चक्र नॉट ओनली गवर्न्स योर डाइजेशन बट एट द सेम टाइम आपकी पावर, आपका व्हाट यू कॉल मैटर ऑफ ग्रोथ, सारे का सारा उसके ऊपर निर्भर करता है। अनाहत चक्र में आपका हृदय ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस को से डील करता है। ये इसमें करुणा का भाव जो है, ये आपके अनकंडीशनल लव, जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे नारद भक्ति सूत्र में, जब नारद भक्ति सूत्र में भक्ति क्या है तो सतु अस्मिन परम प्रेम रूपा, परम प्रेम जो अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, वो ये जब इस प्रकार के, जब आप वो उस प्रकार का भाव आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका हृदय विभोर हो जाता है, हृदय आपका प्रफुल्लित होता है। और उसी डिवोशन, इसलिए उसको भक्ति कहा है उसको। और ये जो है रिजेक्शन और बैलेंस जो है ये भी इसी के, और फीलिंग ऑफ वेलबींग कभी भी हमारे भीतर आता है बिकॉज ऑफ दिस चक्र आता है। विशुद्ध चक्र जो है जैसा कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। आज्ञा चक्र में आपका विजुअल कॉन्शियसनेस, ये जो आपको जो इंट्यूशंस आती हैं उसको क्लैरिटी, जैसे जैसे आपका शांत होते चले जाते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ता है, मन शांत होता है, तो जो जो इंट्यूटिव थॉट आते हैं उसको क्लैरिटी हो जाती है। यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट ऑल दीज थॉट्स प्रॉपरली, और किसी को भी अच्छी राय आप दे सकते हैं उसमें। ये चक्रों के आगे में ये सब का सब ब्यौरा, कौन सा चक्र, कितने पेटल, क्या है क्या नहीं है, कैसा रंग, क्योंकि कभी कभी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो डिफरेंट कलर आपके उसमें विजन में आते हैं, और कभी कभी कुछ साउंड्स आपके मन में उसमें विजन में आती हैं। तो कौन कौन सा क्या क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा इसको ध्यान में रखें तो वो पता चल जाएगा क्या होता है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी मैं थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ। ये जो पर्पस क्या है, जब आप थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस में आते हैं तो मूल बंद क्या है, जलंधर बंद क्या है, और ये उद्यान बंद क्या है, पर्पस क्या है इसके पीछे, ये इस सीक्रेट को जानना बहुत आवश्यक है। तो मूल बंद जो है, जरा सा अगर तरीका क्या है कि थोड़ा सा अपने रेक्टम पार्ट को थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए अपवर्ड, जरा सा लिफ्ट करेंगे तो एनएस लॉक हो जाता है। अब पर्पस क्या है, जैसा मैंने कहा, we have discussed that the apan is located from navel to the anus area. So the tendency of this pran, apan, is to go down. So with the help of this Moolbandha, you are restricting the activity of apana. You are not allowing it to go down. You are trying to उसको ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश में है। और ये जलंधर बंद क्या होता है, ये जो चिन्ह जो है, इसको अगर आपने जुगल नोच में लगाया तो ये पूरे के पूरे ऊपर के डोर्स जो हैं ये सारे के सारे बंद हो जाते हैं। तो ये कौन सा स्थान है, प्राण। सो प्राण इज लोकेटेड फ्रॉम नोज टू द चेस्ट। इसकी टेंडेंसी है प्राण की, इट गोज अपवर्ड।
तो इसको अपवर्ड मूवमेंट को रोकना, इसके लिए जलंधर बंद लगाना। तो प्राण को नीचे लाना और अपान को ऊपर उठाना। और ये क्या होता है, एक समय आता है, ये कोई कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो कोई कठिन नहीं है। तो इसमें एक प्रकार का वो है नाद, इंटरनली एरोज्ड साउंड। इसलिए 6ठे अध्याय में भगवत गीता में भी अपाने ज्योति प्राण, अपान का प्राण में हवन करना और प्राण का अपान में हवन करना, ये पर्पस है उसका, ये है वो सीक्रेट। ये करने से एक नाद उत्पन्न होता है, इसको इंटरनली एरोज्ड साउंड बोलते हैं। और उस साउंड के साथ आप एक हो जाते हैं जब, तो वो आप गहराइयों में जा सकते हैं, ऐसा मान्यता। तो ये हुई बात जलंधर बंद की और मूल बंद की। उड्डयन बंद क्या है? तो जो प्राण जो रिवॉल्व करता है प्रीनियम पार्ट में, ये उडीनम कुरते महाखगा, खग बोले तो वो प्राण की बात है, उस एनर्जी की बात है जो कॉस्मिक एनर्जी इस बॉडी में कंसील है, उसकी बात है। तो ये जो है जंप करती है सुषुम्ना नाड़ी में, इसके लिए उसको कहा कि ये उड्डयन है। ये कब करना चाहिए? तो कुंभकांते, जब आपने कुंभक यानी रिटेंशन किया है, व्हेन यू आर रिटेनिंग और यू आर एग्जॉस्टेड, तो नाउ आपको छोड़ना है, तो कुंभकांते, कुंभक के अंत में और रेचक के एक्सलेशन से पहले क्या करना है? पोस्टीरियर स्ट्रेचिंग करना है। ये जो दिख रहा है आपको, एक मैंने फोटो लगाया हुआ, ये पोस्टीरियर स्ट्रेच करना है उसको। ये जो स्ट्रेच है ये आपके उस प्राण को सुषुम्ना नाड़ी बाही बनाता है। यही है वो पर्पस उस उड्डयन बंद का। अब आगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा का शब्द का अर्थ मैं बताऊं पहले, तो मुदम मैंने आनंद, और मुदम आनंदम, राती जो लाती है, आनंद को लाती है, उसको मुद्रा कहते हैं। डांस में गेस्चर पोस्चर, हमारे जब गुस्सा होता है तो भी हमारे गेस्चर पोस्चर बदल जाते हैं। यहाँ पर एनर्जी को टैकल करती है ये मुद्राएं। ये मुद्राएं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक छन्मुखी मुद्रा का और महावेद का और ये थोड़ा इसका भ्रामरी का थोड़ा सा दिया है। वो बराबर नहीं है पर भी कोशिश किया। लेकिन मुद्राओं के बारे में आगे ये देखें, हठ प्रदीपिका 10 प्रकार की मुद्राओं की चर्चा करती है, धीरण संहिता 25 प्रकार की मुद्राओं की चर्चा करती है, और उसमें ये 10 तो मानी है। उसके आगे इन मुद्राओं से होता क्या है कि आप वो एनर्जी जो वहां हमारे शरीर में जो रिवॉल्व करती है, उसको टैकल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। और दूसरे शब्दों में ये गैस, आपने देखा होगा साईं बाबा का कभी कभी ऐसा हाथ है तो ऐसा ही रह जाता है, एक ही मुद्रा में वो रह जाते हैं। When you stay in one thought, dear friends, when you stay in one thought, आपको पता नहीं, when you are totally engrossed with your work, at that point of time you forget about your body posture at that point of time. तो gesture posture आपका बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वो माइंड की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो वो आपकी वो प्राणिक शक्ति को एकदम जो है वो उसमें इतनी स्टेबिलिटी हो जाती है कि आपको मूवमेंट भी बंद हो जाती है उस समय। तो ये लाभ है इन मुद्राओं का। नाद की बात जहां तक करूं, नाद जो है ये 2 प्रकार का है, एक आहत नाद है और एक अनाहत नाद है। आहत नाद है, एट दिस मोमेंट यू आर लिसनिंग टू मी, air is touching the different parts of the vocal system and producing certain sound. आप इन साउंड को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, आप जानते हैं इस भाषा को, इसलिए इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ये आहत साउंड है, अनाहत नहीं। हमारे ऋग्वेद का थ्योरी है कि अनाहत नाद, अनाहत ब्रह्म, नाद ब्रह्म जिसको कहते हैं वही ओम is the prime sound which is going on incessantly in and out, that is the unstuck sound. So जो अनस्टक है वो अनाहत है, जो स्टक है वो आहत है। अब ये आहत, जब ये प्राण और अपान दोनों जब मिलते हैं तो इसको कहते हैं वो इंटरनली एरोज्ड साउंड। अभी होता क्या है, हम लोग बार बार जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, महर्षि पतंजलि ने पहले पाद के फर्स्ट चैप्टर के 29 सूत्र में 28 में कहा, तद जपस तदर्थ भावना, उसका कंटिन्यूसली जाप करना और उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना, उस साउंड के ऊपर ध्यान लगाना। मतलब क्या कॉन्टेम्पलेट करना है? तो साउंड के ऊपर, यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट अपॉन द साउंड विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो उसके ऊपर ध्यान अगर लगाया तो होगा क्या
ततः 29वां सूत्र है, 29th सूत्र है, ततः प्रत्येक चेतनादि, जो चेतना, द कॉन्शियस विच इज मूविंग आउटवर्ड, इट बिकम्स इंट्रोवर्ट। और जब ये इंट्रोवर्ट हो जाता है तो उसका लाभ क्या होता है? इंट्रोवर्ट हो जाने से क्या होता है? तभी तो हम वो जो the ocean of happiness which is lying within us, that can be actualized when it becomes introvert. And after that you interpret this universe in a different manner. You don't interpret this world on the basis of the name and forms. You interpret this universe or the objective world on the basis of its vibrations. आपका रेजोनेंस आप समझ में आता है और वो एक दूसरे की एनर्जी भी समझ में आने लग जाती है। दैट इज व्हाट इज द सीक्रेट माय डियर फ्रेंड्स। और इसको हठि योगियों ने अपान और प्राण को मिलाने की जो बात मैंने चर्चा की, वो जो है वो वही है इंटरनली अरोज साउंड। अब थोड़ा सा अब यहाँ पर थोड़ी सी बात है, अब प्रैक्टिस के बारे में जरा सा चर्चा करूंगा। 4 चीजें आपने ध्यान में रखनी चाहिए जब तक आप खुद इसका अभ्यास। 4 चीजें कौन कौन सा? तो सबसे पहले है अथासने दृढ़े योगी। व्यक्ति ने सबसे पहले तो सीधे होके बैठना आना चाहिए। जैसे भगवत गीता में कहा, समम काया शिरोग्रीवम। समम काया, काया सीधी होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा होना चाहिए, और उसके बाद आपका हेड और ये नेक एक सीध में होने चाहिए। एक जी है, कम से कम 1 घंटा बैठने का अभ्यास होना चाहिए। ये कब होगा? जब आप दूसरे जो बैठ के करने वाले, खड़े होके करने वाले या लेट के करने वाले, पीठ के बल करने वाले जो कल्चरल पोजेस हैं, उनका अगर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो एक कोऑर्डिनेशन बनेगा हर सिस्टम में। आपका एंडोरेंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे का सारा मदद करेगा कि यू विल बी एबल टू सिट फॉर एटलीस्ट फॉर 1 घंटा के लिए आप बैठ पाएंगे। तो आसासने बशी हित मिताशना, आपको आपके इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद मिद हित मिताशना, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जो खाना सूट करता हो। जैसा मैंने कहा, बात प्रकृति है तो बात को सबसाइड करने वाले पदार्थ चुनने हैं। दैट फूड स्टफ यू हैव टू चूज विच सबसाइड्स द वाता। और उसके बाद आपने आपके एग्रीएबल होना चाहिए, आपके टेम्परामेंट को सूट करना चाहिए उसने, ऐसा खाना खाना चाहिए। और शुरुआत में गुरु उपदिष्ट मार्गेण, आपने किसी के अंडर गाइडेंस। एक की बात मैं यहाँ जरूर कहूंगा, सिर्फ शुरुआत की बात है। ओनली इन द बिगिनिंग यू हैव टू टेक द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ ए प्रॉपर पर्सन, बट आफ्टर दैट होगा क्या कि ऑटोमेटिकली ऐसा, जैसे कि इसने व्यास भाष्य में योगेन योग हो गया, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो अभ्यास आपको आगे की सीढ़ी बताएगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको आगे का अभ्यास बताता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें होना अत्यावश्यक है। और सीधी है कि अगर आपने इस ब्रेथ को पकड़ लिया, आपने अपने माइंड को पकड़ लिया। ये कहते हैं लोग और गाना भी गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, सुमिरन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तात्पर्य है, एक ब्रेथ को पकड़ेंगे तो माइंड को पकड़ सकते हैं, और हम जो चाहें, क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्ष, मन ही आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है और मन ही आपका एनिमी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कैसा करते हैं। तो इसलिए ब्रेथ का सहारा लीजिए और इस मन को फ्रेंड बनाइए, और आप जिस तय तक जाना चाहते हैं, जहां तक डुबकी लगाना चाहते हैं, वो आप लगा सकते हैं। परंतु जब कभी भी whenever you are dealing with this energy, you have to be very very careful. It is said that yukta abhyas yogena sarva roga kshayo bhavet. If you practice it properly, you will be able to overcome all kinds of maladies. But if you practice strongly, it becomes the cause of tada hanti sadhakam. It becomes the cause of various problems. Therefore, as the ring master, it is said in Hatha Pradipika, as the ring master controls the wild animals slowly,
सर्कस में जो हम लोग एनिमल्स के जो करामात दिखाते हैं वो बहुत धीरे धीरे उनको सिखाया जाता है, और अगर उसके साथ अगर हम लोग ठीक से नहीं करेंगे तो वो मार भी डालते हैं। तो इस प्रकार से ये एनर्जी के साथ जब भी काम करना है तो बहुत धीरे धीरे स्लोली करना चाहिए, एंड इट विल हेल्प अस। नहीं तो ये हमको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए शुरुआत में ओनली इन द बिगिनिंग, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए हम कहेंगे कब करना डिपेंड करता है। 4 बार कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। एटलीस्ट दिन में हाउस होल्डर्स दे शुड प्रैक्टिस इट 2 टाइम्स। और कब करना चाहिए? जब मॉर्निंग का समय होता है तब करना चाहिए, जब पेट खाली हो, जब आपका एम्प्टी स्टमक में करना चाहिए। मैं आता हूं थोड़ा सा कुंभक का, ये बिना कुंभक के शुरुआत करनी चाहिए। माय एडवाइस इज, क्योंकि आई एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ दिस, तो मेरा एडवाइस ये है कि 3 महीने तक सिर्फ लेना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। ये एक साइकिल हुआ। ऐसा साइकिल हमने लेफ्ट से क्यों लेना? क्योंकि लेफ्ट से लेते हैं जैसे ही आप अपने राइट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करने की कोशिश में है, इसलिए आपने लेफ्ट से शुरू किया। कारण क्या है? हर चीज के पीछे ऐसे ही हम कौन से शब्दावली का प्रयोग करते हैं, क्या करने जा रहे हैं। माय हम्बल सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज दैट व्हाटएवर यू गोइंग टू डू, please pay attention to the consequences. Whatever the action you are going to perform, pay attention to the consequences of that particular action. अगर आपने ये आदत डाला तो आप ये सभी जगह लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 महीने तक एक व्यक्ति ने सिर्फ इसको हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं। यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बात पित्त कफ में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे हठप्रदीपिका कहती है कि आप डायरेक्ट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं, तो इससे आप अपने सिस्टम को क्लीन कर पाएंगे। इसलिए तो प्राणायामेन पातकम ऐसा कहा गया है। गोरक्षनाथ जी ने भी ऐसा कहा। घेरंड इस बात को नहीं मानते, बोलते हैं कि नहीं, पहले तो आपको षट क्रियाओं का प्रयोग करना ही है, तब जाकर के आप इसमें जा सकते हैं। तो उन्होंने भी 2-3 तरीके बताए, लेकिन ये जो है, जो विशिष्ट संहिता में इस बात को कहा गया है कि सबसे पहले 3 महीने तक बिना कुंभ के। अब आप सभी से मैं एक निवेदन करूंगा, यद्यपि मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया है, मैं आपको कहूंगा कि एक प्रैक्टिस कीजिए, एक लंबा श्वास लीजिए। आप उंगलियों को ऐसा बनाइए, एक अपने राइट थंब को अपने राइट नोस्ट्रल पे रखिए और लंबा श्वास लीजिए। और अभी उस उंगली को, रिंग फिंगर को लेफ्ट पे रखिए और राइट से उसको एक्सहेल कीजिए। रिदम बराबर होनी चाहिए, जर्क नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल्ड इनहेलेशन है, कंट्रोल एक्सहेलेशन है। और फिर राइट से लीजिए और राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़िए। अब इस पूरे के पूरे कोर्स में when you inhale completely, you can observe that there is a pause inside. It is a fraction of second, it stops automatically. When you exhale completely, after exhalation, there is a pause outside. So while doing this Anulom Vilom Pranayam, please try to observe this pause in and out, and try to extend the time of this pause in and out automatically and without jerk. No need to make a noise. कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आपने बहुत धीरे से controlled inhalation and controlled exhalation. Only key is that when you inhale completely, there is a pause inside. Mark that pause, try to extend the time of that pause, and then exhale completely. And बाहर जब छोड़ने के बाद वो पॉज आता है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए और फिर से लीजिए। और ये करते करते अगर आपने लंबे समय तक, हो सकता है आप ज्यादा तैयार हो गए हों, हो सकता है कोई ये कमा करके आया हो कोई व्यक्ति आप में से, निर्भर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 3 महीने तक ये करना ही चाहिए। जिस किसी को, इफ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द touch of air, till slowly you will be able to introduce the kumbhaka part there. But whenever you are introducing the kumbhaka, please use the bandha. Mool bandh is to be practiced compulsory, otherwise your practice will be futile. There will be no your practice will not be fruitful. Therefore there is a need, in the beginning only you have to learn this from some particular master. Thereafter ये अपने आप आपको बताएगा कि अभी आपको आगे क्या करना है। कोई जरूरत नहीं किसी की भी। योगेन योगो ज्ञाता, योग से ही योग को, योग इटसेल्फ इज ए टीचर, इट टीचेस यू। क्योंकि आप नए नए स्फीयर में जाएंगे उसके बाद, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अपने आप सिखाता चला जाता है। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है अनुभव हर व्यक्ति का, तो एक जैसा अनुभव किसी का नहीं होता। तो ये मुझे लगता है। और होगा क्या, लक्षण कैसे होते हैं इसके, तो इसके लक्षण है सबसे पहले बपू कृषत्वम। ऐसा कहा कि आपके शरीर में जो थोड़ी सी स्थूलता होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बदने प्रसन्नता, आपका लस्ट्रस फेस हो जाता है। और आपकी बाणी में क्लैरिटी हो जाती है। आपके चैनल, जब ये नाड़ी चैनल खुल जाते हैं तो आपकी बाणी भी क्लियर हो जाती है। और आपके गैस्ट्रिक फायर जो है वो इंक्रीज, इंडाइजेशन का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता कि आपको प्रॉब्लम आए। और ये सब बातें धीरे धीरे आप साथ साथ में, ये लक्षण हैं, these are the symptoms on the basis of which you can understand that you are on the right track. So there's no need to tell to anybody in the beginning. उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्राणायाम है। सूर्य भेदन है जो राइट से शुरू करना है। अब देखिए, किसी को हुक बाउंस की प्रॉब्लम है, किसी को रिंग बाउंस की प्रॉब्लम है। ये जो कीड़े होते हैं हमारे शरीर में, और कभी कभी ये इसलिए हम अनीमिक भी होते हैं क्योंकि वो हुक बाउंस जो है वो हमारे खून को चूस जाते हैं और हम लोग अनीमिक हो जाते हैं। ये सूर्य भेदन प्राणायाम इतना जबरदस्त प्राणायाम है। उसके लिए साइनस का प्रॉब्लम हो रहा हो, आपको कहीं हीट की कमी पड़ रही हो, तो ये जनरेट करता है। और उज्जाई प्राणायाम करना, सूर्य भेदन को करना कैसा है, तो राइट से लेना है। हमने अनुलोम विलोम में लेफ्ट से लिया, ये राइट से लेना है, ये राइट से लेना है। उसको रोकना है। और रोकने से पहले जब भी आप ये करते हैं तो मूलबंध रेक्टम को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, एनएस लॉक हो जाएगा। मुझे लगता है कि कभी एक प्रैक्टिकल हमने वर्कशॉप करनी चाहिए, तो उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा और वो फील आपको दिया जाएगा प्रैक्टिकल में। तो ये बैकग्राउंड में, तो रोकने के बाद फिर उसको लेफ्ट से निकालना है। ये है सूर्य भेदन। अनुलोम विलोम में आपने लेफ्ट से शुरू किया था और लेफ्ट से ही कोर्स पूरा करना। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये एक कोर्स हुआ। ये अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि का था। ये सूर्य भेदन जो है राइट से लेना, रोकना और अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और फिर लेफ्ट से छोड़ देना। ये है सूर्य भेदन। इससे क्या क्या फायदे हैं ये सब इसमें वर्णन है। उज्जाई प्राणायाम, श्वास लेना है दोनों नोस्ट्रल से, लेकिन थोड़ा सा ग्लोटिस को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। मैं कोशिश करता हूं, अगर ये वॉइस आप तक पहुंच सके तो। अब छोड़ूंगा मैं। एक 10 बार अगर हमने ऐसा किया और वो घर्षण के ऊपर ध्यान दिया, ये जो सोविंग साउंड which is being produced by little bit you have to contract the glottis, automatically this sound will be produced and you have to concentrate on that sound। और होगा क्या, ये सूथिंग एक्सपीरियंस होगा। 10 बार अगर आपने किया, अभी अगर करेंगे तो आपके चेहरे का हाव भाव बदल जाएगा। इतना इफेक्टिव होता है ये उज्जाई प्राणायाम। इसको हर समय आप कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन कुंभक नहीं करना है। जब कभी भी आप कुंभक के साथ करेंगे तो इसको दोनों नोस्ट्रल से लेना है
और उसको रोकना है, फिर लेफ्ट से निकालना है। ये कोर्स हुआ ट्रेडिशनल उज्जाई का। लेकिन डे टू डे लाइफ में व्हेनेवर यू आर वर्किंग, और उसमें लंबा सांस लीजिए, काम कर रहे हैं आप, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लंबा सांस लीजिए और छोड़ते छोड़ते अपना काम करते रहिए, लेकिन उसको थोड़ा सा धीरे 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 छोड़िए और आवाज करते हुए छोड़िए। आप देखिए, ये है आप कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। यही है वो रहस्य, यही है वो सीक्रेट कि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती, आप रिलैक्स रहते हैं, सब काम करते हुए भी रिलैक्स हैं आप। ये है वो सीक्रेट, इसको पकड़ना चाहिए हमने डे टू डे लाइफ। आगे जो है उसके आगे करना पड़ेगा आपको। ये शीतली शितकारी, जब कभी भी फीवर हो रहा हो, स्टमक में पेन हो रहा हो, आपको माइग्रेन हो रहा हो, या कोई फीवर ज्यादा हो रहा हो, तो आदमी ने इन दोनों को करना चाहिए। इनके करने से बहुत आपको माने बहुत ही शांत कर देगा। वो आपके जो एजिटेशन है वो तो एकदम से शांत हो जाएंगे। हर फटीग को आपकी, इवन दो अगर पानी नहीं है आपके पास, और अगर पानी नहीं है, आप ऐसी जगह पे हैं कि अभी पानी नहीं मिल पा रहा है, उस समय शीतली शितकारी प्राणायाम अगर करेंगे तो आपको ये सबसाइड हो जाएगा। जो अर्ज है आपको पानी पीने की, ये अर्ज सबसाइड हो जाएगी आप इस शीतली प्राणायाम। लेकिन करना कैसे? ये शितकारी का देखो, जो दांत निकाले हुए, ये वाला जो शितकारी है, ये दांत देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, और जोर से भरना है उसको, और ये ठंड को महसूस करना है अंदर ये, और फिर उसको रोकना है, और रोक करके वो बंदों के साथ रोकना है, और फिर जो है वो छोड़ते समय बोथ द नोस्ट्रल से छोड़ना है। ये है इसका शितकारी का। शीतली में आप जिह्वा को वो करते हैं, अगला वाला, इसमें ये वाला जो है, ये आगे डिस्क्रिप्शन उसका आगे है। ये शीतली में जिह्वा को, अगर कुछ नहीं हुआ ऐसा करके भी करेंगे तो भी चलेगा। जब जिह्वा अगर नहीं मुड़ती है तो दोनों जो है वो विंटर सीजन में, जब गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी में ये नहीं करना चाहिए, विंटर सीजन में करना चाहिए। और जब कभी भी हीट का प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये करना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। अगर देखिए इधर का रिमूव्स फीवर, स्टमक एक हो, स्प्लीन का प्रॉब्लम हो, पित्त का प्रॉब्लम हो, और मैं यहाँ पर मैं तो कोशिश किया हूँ, लेकिन आज भी अब ग्रे तो हो रहे हैं, तो इस एजिंग प्रोसेस को आप डिले तो कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। यहाँ पर लिखा है शास्त्र में कि ग्रे हेयर्स बिकम्स ब्लैक, तो वहां पर वो हैना यूज करने की या कोई ब्लैक करने की जरूरत नहीं है। वो आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हो सकता है। देखिए आज मैं 65 इयर्स का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक पूरे सफेद नहीं हुए, थोड़ा सा डिले किया हमने इसको कोर्स को। भस्त्रिका सबसे अच्छी बात है। मैं यहाँ के ट्रेडिशन के अनुसार कहूँ, जो श्री श्री रविशंकर जी ने ये गिफ्ट किया है ह्यूमैनिटी को, तो उनकी भस्त्रिका का प्रकार कैसा है ये मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। ये भस्त्रिका है, ऐसे आपको हाथ रखने हैं, दोनों हाथ, और एक लंबा श्वास लेना है और उसको छोड़ना है। और जब लेना है छोड़ते समय नीचे आना है। अगर आपको लो फील हो रहा है, जरा भी लो फीलिंग आ रही है, इसको आप 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, इमीडिएटली रिफ्रेश कीजिए अपने आप को। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। और इसके बाद इमीडिएटली आपको शांत होना चाहिए, लेट जाना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड ढंग से आप अपनी एनर्जी को यहाँ वो कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा इमीडिएटली लंबा श्वास लेकर के छोड़ना चाहिए, ताकि वो सबसाइड। इमीडिएटली आपका लो फीलिंग चला जाएगा, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे इमीडिएटली अगर ये करना है। ये तो मैंने कहा कि एक तो आपने स्वर चेंज किया, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, स्वर चेंज कर सकते हैं। और नहीं, हेडेक हो रहा है, whenever you feel that now you are suffering from headache, तो कौन सा, just observe your nostril, which one is working। अगर वो राइट काम कर रहा है उस समय, तो राइट को बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए और कोशिश कीजिए लेफ्ट के साथ डील कीजिए, यानी कोर्स को चेंज कीजिए। कुछ तरीका नहीं आता तो आपने राइट साइड में सो जाएंगे तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और अगर आपको
लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड में, राइट को चालू करना है तो लेफ्ट में सो जाइए, राइट चालू हो जाएगा। दंड का प्रयोग कीजिए, नहीं तो मुट्ठी बंद कीजिए और मुट्ठी बंद करके आर्म पिट के नीचे दीजिए और आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो चेंज हो जाता है। आप प्रैक्टिस करके देखिए। ये भस्त्रिका जो मैंने आपको बताई है, ये भस्त्रिका इमीडिएट आपको एनर्जेटिक बनाने में सफलता होती है। हम इसको रोज करते हैं। उसके साथ में उनके आगे सुदर्शन क्रिया है, वो जो बिना आपने किसी के सीखे बिना वो करना नहीं चाहिए। लेकिन ये भस्त्रिका जो हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर थोड़ा सा पीछे वाली, हाँ, तो इसमें देखिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको कि सूर्य भेदन, पहले सबसे पहले कपाल भाती करना है 20 स्ट्रोक तक। कपाल भाती सब लोग जानते होंगे, तो कपाल भाती के 20 स्ट्रोक करने हैं और उसके बाद फिर राइट नोस्ट्रल से लेना, यानी कपाल भाती प्लस सूर्य भेदन इक्वल टू भस्त्रिका। ये है फॉर्मूला। इसको अपनाया तो आपको देखिए, इट डिस्ट्रॉयज द एक्सेस बाइल, रिमूव्स द गैसेस, इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक फायर, हेल्प्स इन अवेकनिंग द कुंडलिनी शक्ति, यानी वो एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर है उसको टैकल करने में। और वो फिर पूरा का पूरा वो आपकी क्रिएटिविटी, आपका शांतता, वो सब एकदम से। तो भस्त्रिका जो है, ये भस्त्रिका साइंटिफिकली हमने इस सुदर्शन क्रिया के ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं। वो निर्भर करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला। दिस scripture is a super bazaar. I am making a statement to all of you. Please be attentive. This scripture is a super bazaar. Whatever is suitable to your constitution, your temperament, that particular techniques you have to opt and you have to practice it. And if you practice it for a long time, without any break and with a receptive attitude, then only this practice become firm grounded and you will be totally convinced that yes, जो कुछ भी कहा गया है ग्रंथों में ये सत्य है, ये होना चाहिए। तो भस्त्रिका की बात भी हो गई। आगे मैं डायरेक्टली अभी भ्रामरी सब लोग जानते हैं, उसको सांस लेके आवाज निकालनी है। और जब भी आप ये आवाज निकालते हैं कान आंख बंद करके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हैप्पी सिक्रीशन जो है वो माइंड में होता है और वो हैप्पी सिक्रीशन आपके सारे के सारे मूड को चेंज कर देता है। इसलिए बस भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उचित है। उस डोमापाइन करके एक सीक्रेशन है, जिस सीक्रेट अगर वो सीक्रेट हुआ, डोपामाइन उसका नाम है, डोपामाइन सिक्रीशन होता है माइंड में, और ये भ्रामरी करने से और उससे आपको एकदम से शांत हो जाते हैं। तो वो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। ये प्लावनी बोले तो तैरना है, एज इफ यू कैन फील दैट यू आर फ्लोटिंग, दैट एज पानी के ऊपर अगर हमने श्वास भर के रखा तो जैसे हम पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, ऐसा ही आपको फीलिंग आती है उस प्लावनी से कि एज इफ यू आर फ्लोटिंग। और आपको उसमें जो आनंद की स्थिति है वो आपको मैंने इनडिस्क्राइबेबल आनंद है। वो जैसा कोई अपने डीप वाटर में वो सरफेस पे तैरता है, इस तरह से आप अपने भाव में उस प्रकार से ऊंचा आ सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। तो ये फिजिकली है, काया सिद्धि, कंप्लीट कंट्रोल ओवर वंस बॉडी, इट क्योर्स डिसफंक्शन ऑफ वात पित्त एंड आपकी गैस्ट्रिक फायर इंक्रीज होती है, बॉडी स्लिम हो जाती है, लस्टर्स फेस, ये सब इसमें दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मेंटो स्पिरिचुअल है, सो लॉन्ग ब्रीदिंग इज गोइंग ऑन, माइंड इज मूविंग, तो स्टॉप द ब्रीदिंग, स्टॉप द ये। और इसमें चित्त प्रसादन, ये क्लैरिटी ऑफ चित्त प्रसादन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। क्लैरिटी होती है, कामनेस, क्वाइटनेस होता है, और वही काम, वही प्रसन्नता आपको एकाग्रता की तरफ ले जाती है। एंड दैट एकाग्रता हैज एबिलिटी टू आत्म दर्शन योग्यता, टू लीड टू दैट एक्सटेंट। तो तथा पतंजलि कहते हैं कि देयर आफ्टर ऑल इम्प्योरिटीज एज द ब्लैक क्लाउड्स which covers the sun, slowly if air comes it moves the black clouds. Similarly, with the help of this practice you will be able to remove all kinds of confusion, all kinds of impurities, and there will be a clarity in your mind. Tata kshiyate prakasha varnam। और फिर
मेंटल एबिलिटी ऐसी है कि आप wherever you focus you will be able to focus. वो कहते हैं उसको, वो जो ग्लास जो होता है जिसमें फोकस बना लेते हैं हम, इन द बिगिनिंग हमने बात किया था उसके बारे में. सो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी आपकी फोकस आपका वैसा बन जाता है. आगे बढ़ जाएंगे. मनु ने कहा है कि लेट द डिफेक्ट्स बी बर्न्ड बाय दिस प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. विष्णु पुराण में कहा ये एक्सेसरी है, यही वो सीक्रेट है जिसके माध्यम से आपको, तो नाड़ी का प्यूरिफिकेशन हुआ, उससे क्या होगा, आपका सभी वेलोसिटी जो है वो माइंड की विल बी स्लोली कम हो जाएगी और इट विल इंड्यूस आपके अंदर में एक प्रकार का जो एक पकड़ है हमारी टुवर्ड्स मी एंड माइंड, वो थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेडनेस उसमें ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाता है. और उससे होता क्या है, बिकॉज यू डोंट डिफरेंशिएट देयर आफ्टर, मैं और मेरा का भाव खत्म, डिफरेंस नहीं रहता है, ऐसा फीलिंग आने लग जाती है ऑटोमेटिकली. वही योगिक कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट योगिक कॉन्शियसनेस जिसके बारे में बताया गया है. आगे बढ़ जाएंगे. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, सॉरी आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम. With the practice of pranayama, we overcome all kinds of agitations of our mind and develop a serene state of mind, which not only helps us to remain healthy, but also helps us in furthering our efforts towards the higher practices of yoga. So, it is now you will develop an ability to withdraw yourself from that situation. आपका situation के प्रति reaction जो है that automatically will be changed. देखिए ये निर्भर करता है आदमी के ऊपर कि आपका रिएक्शन, सिचुएशन तो है, हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, ऑटोमेटिकली व्हेन यू टैकल योर ब्रेथ ऑटोमेटिकली इट विल बी चेंज. सो ध्यान में आप चले जाते हैं और फिर ये फोकस करते करते वो थर्ड पाद में, पतंजलि के तीसरे पाद में जो कहा है कि क्या क्या कैसे कैसे आप कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर आ सकती है. ये सुपर नेचुरल पावर जो है ये कुछ ऐसा नहीं है. मैं एक सिंपल बात बताता हूं लास्ट में. इफ यू स्पीक ओनली द ट्रूथ, पतंजलि सेज, सिर्फ सच बोलना, अपनी वाणी को सच बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, अपनी स्टेटमेंट को मैनिपुलेट नहीं करना, तो क्या होता है, वट एवर यू स्पीक इट विल बिकम ट्रूथ. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, होता है और यहाँ पर लोग हैं. तो इन्हीं शब्दों के साथ तो आपको न केवल डे टू डे लाइफ में ये हैप्पी हेल्दी रहेंगे आप, बल्कि जो कोई भी आपकी वेसिनिटी में जो कोई भी आएगा वो भी हैप्पी हेल्दी रहेगा, अगर आपने ये फॉर्मूला, ये सीक्रेट अगर ब्रेथ को डील करने का सीख लिया. तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद.